सो कॉल्ड जो जेनजी वाले जो रिएक्शन भी देते हैं ना, वो लोग इतने मंद बुद्धि हैं. My concept of a 23-year-old girl talking about a 60-year-old man in the language that she did. When you see contestants like Apurva or anyone, or maybe Sufi or anyone, they say mean things about you. Anybody who says anything on the show is nobody to me, so it should not affect me. I've been cool about it. Nothing, whatever, whoever says is bothering me because maybe taking my name is helping them to get some attention, but I don't need it. Season 2 आ रहा है, अपने कौन से फ्रेंड को you would like for Traitor Season 2 में? मेरा एक ही फ्रेंड है अभी कॉमेडी इंडस्ट्री में, आई थिंक बस्सी को जाना चाहिए. बस lovely. And another Ali because he's really good at it. I would, one of my co-actors, Paras Kalnawat, I think he would be a good guy to go in a show like that. Hi, I'm Harsh Gujral. Hi, I'm Jasmine Bhasin. Hi, I'm Sudhanshu Pandey and you're watching us on Filmy Beat. Hello all, welcome to Filmy Beat. This is Kinnari Singh in conversation with the team of Traitors, Sudhanshu Pandey, Jasmine Bhasin, Harsh Gujral. Welcome to Filmy Beat and congratulations on the success of Traitor first of all. Thank you so much. Shukriya. Traitors for me is like a fresh slice of life in the world of reality show and credit आप तीनों को equally जाता है. एक खुशी इस बात की थी शो को लेके कि यहाँ पे आप जीतते हो, आप हारते हो. It is all either because of you या किसी ने आपको धोखा दिया, something like that. Fandom का इसमें कोई रोल प्ले नहीं है. So सबसे पहले तो of course I'll start with you. Any specific reason now that you see your journey, you can point out कि शायद इस चीज़ के वजह से या इस इंसान के वजह से आप जीत नहीं पाए या फिर आपकी जर्नी मिड में खत्म हो गई. If you think about your journey and if you can pinpoint any reason. So in my life also, I have always whatever I've done or whatever has happened in my life with me, I've never blamed anybody. I've never regretted anything. Okay. And that is exactly how I have been in the show. मुझे ऐसा लगता है कि जो भी मैं करता हूँ या जो भी मेरे साथ होता है उसके लिए सिर्फ मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ और मैं किसी और को उसमें ब्लेम नहीं कर सकता हूँ. So when I watch the show now, I don't have any reason to blame anybody or hold anybody else responsible for whatever I did in the show or या मुझे किसी ने धोखा दिया. Everybody in there was there to win the show. Everybody was there with the same purpose, with the same agenda, but had different approaches to play it. That is all. So nobody is responsible for anybody. Right. But did you think you lacked somewhere as a player? No, I don't think in fact, I think I got lucky that that I reached so far in this show because I was not a part of any gang. I was not a part of any manipulation. I was not a part of using my brain too much to figure out कि यार ये हो सकता है वो. तो मैं कहीं पे भी ना डिटेक्टिव बना ना कुछ किया ना मैंने ऐसी कोई चीज़ें कि मैं शर्लॉक होम्स बन जाऊँ और शर्लॉक होम्स बन जाऊँ और मैं देखूँ कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. तो मैंने ऐसा कुछ भी कोशिश नहीं की. I just thought I'll go along and I'll be what I am in real life because this is the only time my fans or my audience would see Sudhanshu Pandey in a real space. Otherwise, they don't get to see you, right? They only see you playing different characters. So I just thought I'll be myself and I'll just play along as the show moves forward. और जैसा होगा वैसा देख लेंगे. कहीं पे अगर जरूरत पड़ी कि कहीं पे दिमाग लगाना तो लगा लेंगे, नहीं तो I will just be the way I am. And I think that helped me, in fact, pull along so far. Right. Jasmine, the same question to you. यार आपको पता ही है इमोशंस में डिसीजंस लेना शायद ठीक नहीं होता है, स्पेशली गेम शोज में. पर्सनल लाइफ में ठीक है, तो इमोशंस में कैरी होके डिसीजन लेना शायद मुझे कम करना पड़ेगा. बट मुझे पता है मेरी खराबी है. मैं कल को फिर किसी गेम शो में जाऊंगी, फिर मैं इमोशनली ही खेलूंगी. आई कांट चेंज दैट अबाउट मी. सो दैट इज वन थिंग आई शुड हैव. Right. Harsh, what about you? The same question. क्या कोई गलत डिसीजन लिया मैंने? No, now that you look back at your journey, do you क्या think अलग कि कुछ किया और था? अच्छा कर सकते थे, कुछ और अलग? आई थिंक इतना अच्छा किया तभी लास्ट तक गए हैं. तो इससे अलग क्या ही कर लेते. तो आई थिंक जब आप एक जो आपकी फाइनल डेस्टिनेशन होती है, जब वहाँ तक पहुँच भी जाते हो अगर आप, तो आई थिंक आपको लगता है कि आपने थ्रू आउट द जर्नी अच्छा ही किया होगा. बिकॉज इस गेम में आप कभी आपको किसी से बना के रखनी है, कभी किसी से बिगाड़ के रखनी है, वो सबका बैलेंस बना के रखना है, कहीं ओवर नहीं करना है.
तो आई थिंक एज एन इनोसेंट जब हम खेल रहे थे, हम बहुत एनर्जी में खेले हम लोग, कि मतलब पकड़ लेंगे, खत्म कर देंगे, ये कर देंगे। भले ही उस चक्कर में हमने 2-4 सैनिक अपने भी मार दिए। 2-4 अरे भीड़ भी तो कम करनी होती है। कितना प्यारा है लड़का ये। बहुत I बुरा think है, one दो thing चार which he also agrees with is कि उसने अलग किया था एंड में इसको इमोशंस में नहीं इसको I don't think so. I think मुझे ऐसा लगता है कि ये भी आपका नेचर ही है, आपका जैसे Yeah, आपका नेचर है nature कि आप है। उसके साथ आपने अगर एक पे ट्रस्ट कर लिया कि चलो ठीक है यार कोई बात जो नहीं, होगा बट आई सही। थिंक दूसरे वाले ने भी बढ़िया ही खेला होगा तभी वो जीता है। Exactly. तो सामने वाले ने अच्छा खेला है, दिमाग से खेला है, और बाहर आके ऐसा भी नहीं कि आपस में लड़ाई है आपकी कि नहीं नहीं ऐसा क्यों कर दिया। और जीवन में आई थिंक हर इंसान को कभी ना कभी किसी ना किसी पे ट्रस्ट तो करना ही पड़ता है। यू नो इट इज इम्पॉसिबल अदरवाइज टू लिव योर लाइफ, सो you have to start trusting someone at least, you know, in your life. और And गेम शोज के ट्रस्ट और game show में बिट्रेल्स वही वहीं होता तक रह जाते हैं। हाँ, वो तो है। वो वहीं पे खत्म हो जाते हैं। हम लोग बाहर आए अपना, हमने अगले दिन ट्रेटर की पार्टी करी। राज मैंने चंद्रा- तो सबसे पहले आप पूरब को सोचो- मैसेज किया। आप सोचो जो आदमी Yeah. पहले एपिसोड में बाहर निकल गया था, वो पार्टी का वेट उसके कर क्लब में पार्टी कर रहे हैं हम लोग जाके। And he's inviting, he's Best taking in us India. on He only trips. hosted It's so beautiful. समझे? तो उन्होंने सारा कुछ अरेंज कर रखा था, इतना हमने एंजॉय किया, पूरी रात बाहर ये मीडिया सब कुछ था। तो वो पहले एपिसोड में बाहर थे। तो आई थिंक बट आई थिंक मुझे कोई एक रिग्रेट चीज और कमाल की थी इस शो में कि जो सबसे नादान आदमी था ना वो सबसे पहले चला गया। राज भाई You know? राज नादान मीनिंग इन टर्म्स द स्कीम ऑफ थिंग्स, जो बोले। जहाँ पे वो जहाँ पे बहुत सारे लोगों ने समझ लिया था गेम को कि कैसे करना है, वो बिल्कुल ही ना समझ निकला। पहले तो साहिल गए थे ना, पहले तो सबसे पहले तो नहीं सेम ही एपिसोड ना, COS, तो साहिल का तो circle मर्डर of हुआ shock. था, ये वोट आउट हो गया, ये पकड़ा गया। साहिल भाई के दिमाग में तो अभी तक मर्डर चल रहा है मुझे लगता है। Okay. You know, reality shows, one thing it works wonderfully because जो viewers होते हैं वो बहुत you know घुस के and you know emotionally, mentally देखते हैं उस शो का, and उनके बहुत strong opinions होते हैं हर एक के गेम को लेके। तो I'll talk about that. Okay, starting with you, Jasmine. The one opinion which people you know जिनके हैं कि आप of course innocent थे, आपको पता चल गया था कि ये शायद you know मैं उतना नहीं सोच पाऊंगी, तो आप ज़्यादा उसमें दिमाग भी नहीं लगाते थे, आपने कुछ चीज़ों पे छोड़ दिया था as it is. But the one allegation, let's say on you, is that कि you know आपके जो दोस्त रहे करण कुंद्रा और उर्फी जावेद, you know कहीं ना कहीं वो आपने उन्हें backstab किया है. So when you hear about those allegations, what do you want to say about the game? Is it true? Is it false? या फिर वो सब गेम में उतना समझ ही नहीं I आता think है? it's false because backstabbing, though I doubted my friends because the show was trust no one, doubt everyone, धोखा everywhere. जी. Though I doubted my friends, but I don't think it will be called backstabbing because I never wrote Karan's name. I never wrote Urfi's name, though I kept on confronting with her. जो दो दोस्तों के बीच में तू है क्या बता दे, मेरा ट्रस्ट हिल जाएगा, because I जी. was emotionally attached to her. I never wrote, जिसको भी मैंने शो में दोस्त कहा जन्नत हो, एक ही इंसान जिसका मुझे बहुत दुख हुआ वो है रफ्तार, but I would not call it backstabbing because it was the game. I don't think anybody backstabbed anybody, even if they were best of friends. Right, right. Harsh, you know, you were one of the most entertaining person on the show. You know, बहुत ज़्यादा entertainment हुआ. But वहीं ये भी you know बार आया कि थोड़ा आप अपने शब्दों को लेके you know हो जाती थी इशू, whether it was with Elnaz and you know सुधांशु सर, और या फिर आई थिंक आपने एक स्टेटमेंट ये भी कहा था उर्फी को लेके कि उर्फी जैसी लड़की मुझे इन्फ्लुएंस नहीं करती, समथिंग लाइक दैट, जो उससे बहुत हर्ट हुई. नाउ डू यू थिंक अबाउट दोज डेज कि यू शुड हैव बीन मोर केयरफुल और एनीथिंग? नहीं केयरफुल किस बात का ना, आप देखो ना ये 24/7 कैमरा आपके ऊपर है जी. ठीक है, आप कुछ ना कुछ मुंह से बोल रहे हो, उसमें से क्या एक्चुअली रील्स के जमाने में क्या होता है ना कि वो 15 सेकंड कट के निकल उतना आते हैं, सनसनीखेज उतना सनसनी कट के निकल आता है, ठीक है, और वो फिर वो घूमता रहता है. प्रॉब्लम वो नहीं है. ऑल्सो उर्फी को भी पता है कि वो क्या बोला गया था, जो वो लाइन बोली गई थी उसका मतलब था कि ये मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग हेडेड और ये लड़की मुझे इन्फ्लुएंस कहाँ से कर देगी भाई. ये उसको भी मैंने फोन करके बोला था और उसको पता भी था ये बात. या सुधांशु जी के बारे में जो बात हुई, या एलनाज, आई थिंक 2-4 लाइनें इधर उधर ड्यूरिंग अ लाइव शो जो पूरा ही रियलिटी है. आई थिंक एज अ कॉमिक तो मेरे मुंह से मैं भी वहाँ कोशिश कर रहा हूँ कि एक एंटरटेनमेंट फैक्टर बना के रखूँ, एक शो के लिए बना के रखूँ. और जैसे जानवी जी के साथ थोड़ी सी मेरी हो गई थी. जानवी जी इकलौती थी जिनसे मैं जिनसे बात करता था, और ज्यादा लोग बातचीत नहीं कर पाते थे, मैं बात करता था. उनको एक वो कोई वो जादू टोने वाली बात बुरी लग गई थी,
बट आई थिंक मैंने एक क्वेश्चन फनी वे में पूछा था कि आपको वो भी आता है क्या, तो ठीक है कभी किसी को कुछ बुरा लग जाता है, आपकी पर्सनैलिटी समझने में भी टाइम लगता है। आप पहले दिन किसी के साथ जाते ही, मैं अगर जैस्मिन को पहली बार मिला हूँ 2-4 मजाक कर दूंगा, बुरा मान जाएगी। बट अगर आप यही देखो कि आज मैं इनको इतने अच्छे से जानता हूँ, सब जानता हूँ, सुबह से 10 मजाक कर चुका हूँ, उनको उतना बुरा नहीं लगेगा। दे नो माई पर्सनैलिटी। जो इंटरनेट पे जाके लोग 15 सेकंड की रील देख के जज करते हैं, वो गलत जज करते हैं। आपको पूरा देखना पड़े, पूरी 3 घंटे की पिक्चर देखनी पड़ेगी ये जानने के लिए कि बीच में ये वर्ड क्यों यूज हुआ है। समझ रहे हो? तो आई डोंट थिंक सो कि उसमें मुझे कोई रिग्रेट है किसी चीज का। आई थिंक लाइव फॉर्मेट था, रियलिटी शोज थे, सबके मुंह से कुछ ना कुछ निकल रहा था इधर उधर। तो आप भी रियल लाइफ में जब कुछ बोलते होगे, अगर पूरा दिन आपको रिकॉर्ड करके रखें तो 24 घंटे में एक लाइन तो आपकी भी गलत होगी। 4-5 लाइन 4-5 लाइनें होगी ना, तो मेरी पूरे शो में 3 है। शो का नाम है द ट्रेटर्स। इल्जाम तो लगेंगे, इल्जाम लगेंगे, चीजें होंगी। ऑल्सो अगर ये 4-5 लाइनें एज एन इल्जाम मुझ पे ना लगती तो मेरा उस एंटरटेनमेंट फैक्टर का फायदा क्या उस शो में आके ना। तो आई थिंक पर्सनल अगर किसी ने ले लिया है तो फिर तो हम ठीक है, अगर किसी ने पर्सनल लिया है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बट नाउ एवरीथिंग इज ओके बिटवीन यू टू। अरे हमारे मैं 3 बार उसके बाद पैर छू चुका हूं इनके, पता नहीं ये पैर हर नहीं, वो तो इसने बड़े इतने बड़े थोड़ी है। बड़े तो छूता क्या हूं। दिखाना मुझे चाहता है मुझे ये इनके अंदर इंटरव्यू कोई में? एक क्या ऐसी दिखाना चाहता है? ये बोलने एक की चीज पैर मुझे इनके अंदर ऐसी नजर आती है कि मुझे इनके पैर छूने अभी ही पड़ते हैं। थोड़ी देर पहले इसने मुझे मोहनजोदाड़ो हड़प्पा बना दिया था। नहीं हुआ क्या, मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली क्या हुआ। मैंने एक दो रील्स में ऐसे देखा तो मैंने इनको मैसेज किया, मैंने सुधांशु जी क्या हो गया, कुछ बुरा तो नहीं लगा? नहीं एक्चुअली कहते आई लव यू हर्ष यार, लेकिन यार मैंने see my nature is that if I feel that something was not in the right space, I always voice it out because that's how I am. वो like उसको लगता है जब वो कोई उसके मन में कोई ह्यूमर वाली चीज आती है, कोई चीज वो बोल देता है, बट उसको पता नहीं कि सामने वाले के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट? तो मेरा ये मानना है कि अगर कोई चीज मुझे सही नहीं लगी तो मैं उसको वॉइस आउट जरूर करता हूँ, बट बड़प्पन इसमें होता है कि मैं भी एक्सेप्ट करूँ, वो भी एक्सेप्ट करे, और the basic requirement is कि when you have respect and love for each other, that should not go away, you know, and that obviously didn't go away at all. इसने मुझे वॉइस मैसेज किया था, हम लोगों ने थोड़ी देर वॉइस मैसेज खेला, और फिर मैंने इसको बोला, मैंने कहा यार you know I love you and I know how talented you are, और तू अभी बस नेक्स्ट बॉम्बे आएगा तो घर आना। तो दैट इज हाउ वी सॉर्ट इट। कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है कि ये एंटरटेनमेंट के लिए कुछ बात बोल रहे हैं या किसी को डिमीन करने के लिए नीचा दिखाने। Every fight or every debate is not targeted at ending a relationship. Right. It is also for the betterment of a relationship, right? So it is important to voice out your concerns or anything that you had not liked. तभी तो relationship और मजबूत होती है। Otherwise तो break away हो जाता ना। अगर मैंने दिल में रख लिया होता तो हो सकता है मैं जिंदगी में कभी इससे नॉर्मल नहीं हो पाता, you know? अभी कम से कम it is out of the way. Right. That is it. Okay. One last question. Jasmine, I remember जब आपने बिग बॉस किया था एंड उसके बाद हमने आपका इंटरव्यू लिया था, एंड यू डिड सेड दैट यू नो वो शो के ख़त्म होने के बाद, चाहे वो सोशल मीडिया पे हेटेड या किसी चीज़ की वजह से, इट रियली अफेक्टेड यू मेंटली. आई स्टिल रिमेंबर दैट इंटरव्यू. Of course, जैसे जैसे वक्त बीतता है, people get more strong, evolve mentally, and I'm sure आप भी हुए हो. But still, जब आप शो देखते हो and when you see contestants like Apurva or anyone, or maybe Sufi or anyone, they say mean things about you, and mean इतना हल्का mean नहीं that you can take away with a pinch of salt, but it is actually mean. एंड प्रॉब्लम ये होता है कि रियलिटी शो खत्म हो जाता है, बट वो रील अब यूट्यूब पे चलते ही रहने वाली है. नाउ हाउ मच हैव यू इवॉल्व्ड एंड हाउ डू यू टेक दिस थिंग्स? I have evolved that much that I understand that doing shows is part of my profession. I'm an actress, and basis I get such shows, I get such offers. I enjoy doing those shows, but that's work. So I separate work from my personal life and mental peace, and anybody who says anything on the show is nobody to me, so it should not affect me. And I have learned that boundary. I have evolved over the years. I have people who help me, therapists, etc. And I've been cool about it. Nothing, whatever, whoever says is bothering me, because maybe taking my name is helping them to get some attention, but I don't need it. Right. So, when you got vocal about Apurva, definitely Apurva fandom thought that what was the need, because जो भी हुआ वो आशीष जी के साथ हुआ था, and अगर वो सबसे पहले आके नहीं बोले, so what was the need कि you know आप जाकर बोले? So my question to you is, you know, what triggered you, because आप उस situation में तो you know you can tell us the. Actually क्या है ना, मुझे कभी कभी लगता है कि so called जो Gen Z वाले जो रिएक्शन भी देते हैं ना, वो लोग इतने मंद बुद्धि हैं कि उनको ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इट वॉज नॉट अबाउट आशीष जी,
इट वॉज नॉट अबाउट आशीष जी एट ऑल. हो सकता है आशीष भाई को बुरा ना भी लगे, क्योंकि वो भी सुपर कूल टाइप के हैं, यू नो. हो सकता है उनको बुरा ना लगे. इट इज नॉट अबाउट दैट. इट इज अबाउट माई कॉन्सेप्ट ऑफ अ 23-year-old गर्ल or boy or whoever talking about a 60-year-old man in the language that she did, right? That was my concern कि ये गलत है, ये आप, this is disrespect, and this is because it's on camera, it is going to be watched by crores of people, and because it is there on television, a lot of the youngsters will think it is okay to speak this language about somebody like that, because it is legitimized by showing it on television. So that is wrong, and I think we need to really put brakes on this, because certain kind of language used by a certain Gen Z, the so-called Gen Z, cannot become an example for the rest of the Gen Z, because all Gen Zs are not like that, right? So that is why I wanted to voice this opinion, and that is my concern. But there are idiots out there who support these kind of things. जो मुझे भी कुछ messages आए, किसी ने कुछ लिख दिया उल्टा सीधा, किसी ने कुछ लिख दिया, तो मुझे लगा कि यार ये actually यही लोग हैं जो इस तरह की चीज़ों को legitimize या justify कर रहे हैं कि भाई गाली देना या किसी का नाम लेके भी बोलना ये okay है, because that is how it is. They have no clue where we come from or where we belong. So that is the unfortunate part. Right, but all said and done, the show was really entertaining, and of course अभी तो बाकी है finale देखना और ज़्यादा entertainment देखना बाकी है. To all the viewers who are really happy with Traitors, and also the season 2 is coming, जाते जाते एक सवाल है कि सीजन 2 आ रहा है, अपने कौन से फ्रेंड को यू वुड लाइक, कास्टिंग होना हो तो इट इज अ डिफरेंट थिंग, बट यू वुड लाइक वो ट्रेटर सीजन 2 में. स्टार्टिंग विद हर्ष. आई थिंक मेरे को तो मेरा एक ही फ्रेंड है अभी कॉमेडी इंडस्ट्री में, आई थिंक बस्सी को जाना चाहिए. बस लवली है ना, बस्सी जाएगा तो मजा आ जाएगा. अनदर पर्सनालिटी हु कैन जस्ट आल्सो प्रोफेशन से लॉयर रहा है. तो दिमाग तो हाई है, कॉमेडी में भी आप उसका देखते हो इंटेलेक्ट कितना हाई है, समझ रहे हो. तो आई थिंक वो जाके तो अगर ट्रेटर ना बना तो पहले 1-1.5 दिन में ही वो तो ऐसे पकड़ लेगा. राइट. आई थिंक बस्सी शुड गो. कूल. जैस्मिन. I have 2 names on my list. One is Sandy. I think he's going to be a great player. He's going to be a very good player. And another Ali, because the other format, Wolf and Villager kind of format, we play a lot at home, and he's really good at it. Yeah. Okay. So these two are good players. Right. Okay. So. I think I would one of my co-actors, Paras Kalnawat. I think he would be a good guy to go in a show like this, because he's smart, intelligent, and he's got good instincts also. Right. On this note, thank you so much, guys, and I wish you all the best.